Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we're going to discuss about a very important topic according to your semester 6 examination, and the topic is types of balance of payment disequilibrium. And the same question is also called as types of disequilibrium. So here ultimately we need to think about the balance of payment and its disequilibrium, friends. Okay, so let's learn together. So first of all, we just need to think about what is the meaning of disequilibrium. Okay, now in our last video we completed the very important question again according to our semester 6 examination, and the question was the balance of payment and its structure. At the end of this question, we learned about what is the meaning of equilibrium and what is the meaning of disequilibrium. If you want to watch that videos too, so here I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. So let's learn about the meaning of equilibrium and the disequilibrium. If the imports are equal, imports and exports are equal, both are equal, and the answer is 0, so it will be called as an equilibrium. When your import and exports are not equal to each other, and if there is a distinction between the import prices and the export prices and the import value and the export value, so it will be called as a disequilibrium. Okay, so now हम समझने की कोशिश करेंगे जो भी मिसमैच हमको दिखाई देता है ना आपके import sides and export sides में साइड में, और ऑल्सो यू कैन से दैट द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो भी डिस्टिंक्शंस और मिसमैच दिखाई दिया अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सो फ्रेंड्स इसी को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम. ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड अगेन इफ यू आर रेफरिंग द मनन प्रकाशन बुक, तो दिस इज द चैप्टर नंबर 9 फ्रेंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Types of disequilibrium. Question can be asked like that. They explain the different types of disequilibrium in BOP, that is the balance of payment. So चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा राइटिंग मटेरियल मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स, जिसको आप डायरेक्टली उठा के एज इट इज़ यू कैन राइट इनटू योर examination. Okay, you're not supposed to refer any other material. This is enough to get the 15 marks or the sufficient marks. Okay, when there is a mismatch between the receipts and payments leads to disequilibrium in the BOP. मतलब receipts and payment में अगर mismatch दिखाई दिया, सो हम ये कहेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में है, डिसइक्विलिब्रियम में. लेट्स टेक एन एग्जांपल. समझिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होती है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा. एक होती है आपकी रिसिप्ट, दूसरी होती है पेमेंट, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट्स एंड डेबिट्स. समझिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, आपने रिसिप्ट्स किया 50,000 रुपीज़. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल विद शॉर्ट अमाउंट. 50,000 आपने रिसीव किया और आपने पेमेंट भी 50 ही का किया, सो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, लेकिन आपने 50,000 का पेमेंट किया एंड यू जस्ट रिसीव द 40,000 रुपीज़. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल द मिसमैच बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. and it leads the disequilibrium in the balance of payment. So BOP deficit and surplus indicates the situation of BOP disequilibrium. मतलब अगर आपको जानना है कि क्या है disequilibrium, उसके लिए you have to go with the balance of payments and its surplus and deficit. अगर surplus में जा रहा है तो आपको समझ में आएगा कि भाई 50,000 रुपया लगाया था बट यू रिसीव 60,000. सो अगेन इट्स अ मिसमैच. इट इज़ अ पॉजिटिव बट अगेन इट्स अ मिसमैच एंड डिसइक्विलिब्रियम. अगर आपने समझिए 50,000 रुपया लगाया एंड यू जस्ट रिसीव द 40,000, सो अगेन इट्स अ डिसइक्विलिब्रियम एंड इट इज़ नेगेटिव. सो इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा रखा है. सो चलिए पढ़ेंगे इसके टाइप्स. अब हमने सीख लिया कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो इसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम. इसकी कुछ टाइप्स है जो हम यहाँ पर लर्न करेंगे. सो सबसे पहला टाइप, टोटल वी हैव 4 टाइप, टोटल वी हैव 4 टाइप्स ओनली. सो फर्स्ट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम एंड द स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम. सो सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम व्हिच इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम. शॉर्ट रन यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली बात हो रही है जो शॉर्ट रन के लिए, मतलब इट कैन बी फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ क्वार्टाइल और विद इन द ईयर, यानी कि इट विल बी कन फॉर अ ईयर. समझिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम को हम और क्या कहते हैं. इसे हम कहते हैं टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कुछ ही टाइम पीरियड ऑफ के लिए होता है. सो इट इज़ जनरली फॉर फ्यू मंथ्स और अ ईयर, मतलब कुछ महीने यानी क्वार्टाइल 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए ही होता है, उसके अंदर का ही होता है ये डिसइक्विलिब्रियम. उससे ज़्यादा हमारा इकोनॉमी डिसबैलेंस नहीं होता.
दिस इज अकर्स बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, जो मैंने आपको अभी बताया. द रीजन कुड बी द नेचुरल कैलामिटीज एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. मतलब समझिए, अब शॉर्ट रन जो है ये हमको समझ में आ रहा है कि इट इज़ एन टाइप ऑफ अ डिसइक्विलिब्रियम जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं. लेकिन क्यों नहीं मैच हो रहे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो देयर आर टू रीजंस आर गिवन टू अस, दैट इज द नेचुरल कैलामिटीज अकरेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टर्की एंड सीरिया. अब टर्की के कुछ रिलेशंस होंगे, ट्रेड रिलेशंस हो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता होगा विद अनदर कंट्रीज, राइट. या फिर इंडिया से जापान, जर्मनी, अमेरिका, यूएस, यूरोप, किसी भी कंट्री से इसके ट्रेड रिलेशंस हुआ करते होंगे जहाँ पर वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द डिजास्टर, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका सारा कुछ जो ट्रांजैक्शंस थे या ट्रेड रिलेशंस थे वो स्टॉप हो गए होंगे, राइट. सो इट कैन बी फॉर अ मंथ ऑल्सो, फॉर 15 days ऑल्सो, फॉर 6 months ऑल्सो, फॉर अ ईयर ऑल्सो. बट ईयर में ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है. सो नेचुरल कैलामिटीज कुड बी द रीजन फॉर द शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम, फ्रेंड्स. एंड द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. अगर पॉलिटिकल ट्रेड बैरियर्स है, सो यहाँ पर भी आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है. सो एंड अगेन दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम. नाउ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन इज, जब शॉर्ट रन जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर इट इज इन अ कॉन्टिन्यूस इन नेचर ना, सो शॉर्ट रन विल ऑटोमेटिकली बिकम द लॉन्ग रन. मतलब कि अगर टर्की और सीरिया का सिचुएशन जो है ट्रेड रिलेशंस प्रॉपर नहीं हो पाया विद इन अ ईयर, सो इट विल डेफिनेटली टेक 2 years, 1.5 years, 3 years, 4 years, so more than 1 year, no? So automatically the short run disequilibrium will convert into the long run disequilibrium. Okay, पढ़ते हैं. If there is a continuity in the short run, it will become the long run disequilibrium. It is also called as fundamental disequilibrium. याद रखना है, शॉर्ट रन को हम लोग टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, लॉन्ग रन को हम लोग फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम भी कहते हैं. द रीजन इज एक्सेसिव डिमांड फॉर इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू पॉपुलेशन. अब लॉन्ग रन के लिए क्यों जाता है, समझिए. अभी हमने देखा चाइना इज द टॉपेस्ट पॉपुलेशन कंट्री एंड आफ्टर द चाइना इंडिया कम्स, राइट. सो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हम जितना भी प्रोडक्शन करते थे वो सफिशिएंट नहीं होगा. According to the population, either we have to increase our production or we have to go and we have to do import, right. So अभी at the same time requirements को fulfill करने के लिए if you didn't have any product and item, so you have to import it from outside the country, right. So जब आप outside the country से किसी चीज़ों का डिमांड करते हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो because of the population, so again it will be called as a long run disequilibrium because here your import will increase, import बढ़ जाएगा और export decrease हो जाएगा and it leads to disequilibrium. I hope आपको ये दो टाइप समझ में आ गए, फ्रेंड्स. So let's start with the third one, which is called the cyclical disequilibrium. ओके, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल पता होगा, जो आपने 14 में पढ़ रखा है. सो फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल में हम लोगों ने 4 सिनेरियोज देखे थे. प्रॉस्पेरिटी, फिर आपने देखा था रेसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. सो आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी मेरी स्क्रीन पे. अगर आप टॉप पे देखेंगे सो वो है प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पर आपका ओवरऑल जो इकोनॉमी में सारी चीज़ें होती है वो हाई लेवल पे होती है, अच्छी चल रही होती है. लेकिन ऑल ऑफ सडन बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता जा रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ रेसेशन पीरियड, जहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटीज़ डाउन हो रही है इकोनॉमी की. लेकिन जब वो और ज़्यादा डाउन हो जाती है, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन, जहाँ पर एकदम जो है चीज़ें कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, प्रोडक्टिविटी. लेकिन उस डिप्रेशन से निकलने के लिए यू हैव टू डू सम वर्कआउट्स एंड यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज़. सो डिप्रेशन से निकलने वाला जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं रिकवरी. सो यही पीरियड है हमारे जो इकोनॉमी में आता है. इकोनॉमी कभी बहुत अच्छा बूम करती है, प्रॉस्पेरिटी करती है, कभी डाउन होने लगती है रेसेशन, कभी एकदम डाउन हो जाती है डिप्रेशन, कभी डिप्रेशन से निकलकर फिर से उभरती है, इसे हम कहते हैं रिकवरी. यानी कि हम वहाँ पर रिकवर कर रहे होते हैं हमारे इकोनॉमी सिचुएशन को. ये सब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे लेवल से आप जो है फेजेस दिखाते हो. सो अगर आपका प्रॉस्पेरिटी है सो बहुत अच्छी बात है, बट जब रेसेशन एंड डिप्रेशन आता है ना, सो यहाँ पर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी लेवल जो है डाउन हो जाते हैं. और इससे कोप अप करने के लिए यू हैव टू डू सम चेंजेस. इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है सरप्लस की जगह डेफिसिट में हो जाता है एंड डेफिसिट इज अगेन लीड्स टू द डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ. साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम इज लाइक अ ट्रेड साइकिल. इट हैज़ ऑल्सो 4 phases called prosperity, recession, depression and recovery. All the factors will bring changes in the terms of trade as well as the growth of trade. But obviously अगर recession और depression आएगा तो हमारा ट्रेड हो ही नहीं रहा है, so growth of trade, terms of trade में changes आ जाएगी और changes की वजह से हमको deficit देखने को
मिलेगा। और डेफिसिट की वजह से आपका डेफिसिट भी देखने मिल सकता है, सरप्लस भी देखने मिल सकता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी रहेगा तो हम ज़्यादा बनाकर बेच भी सकते हैं ना, इकोनॉमी का सिचुएशन उसमें बहुत अच्छा होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आया अगेन इट विल बी कॉल्ड एज अ डिसइक्विलिब्रियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। आप स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके पूरे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और जिसमें हम लोग दो फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे यहाँ पर, वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सम फैक्टर्स एंड सेक्टर्स एट होम एंड अब्रॉड व्हिच अफेक्ट्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट हैज़ टू इफेक्ट्स, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से चेंजेस होती है हमारे पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में। और ये जो चेंजेस होती है वो दो टाइप की हो सकती है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। और ये चेंजेस सिर्फ किसी एक कंट्री में नहीं होती, बल्कि होम एंड अब्रॉड दोनों कंट्री, मतलब दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, सो दोनों में से किसी भी कंट्री के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा तो अल्टीमेटली ऑपोजिट कंट्री पे भी उसका इफेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी टर्की ही ले लेते हैं। टर्की पे जो भी हुआ, टर्की समझिए एक्सपोर्ट करता था कुछ गुड्स एंड आइटम्स जापान को, जापान को वो आइटम्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं मिल पाएंगे ना, होम एंड अब्रॉड दोनों को यहाँ पर जो है तकलीफ होगी। ऑन डिमांड साइड, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिमांड फॉर इंडियाज रेडीमेड गारमेंट्स डिक्लाइन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द चीपर गारमेंट्स फ्रॉम चाइना, इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इट विल लीड टू डेफिसिट। मतलब बात यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स कि समझिए डिमांड साइड की वजह से कैसे चेंजेस हो सकती है, डिमांड में चेंजेस की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम कैसे आएगा। समझिए यूएसए जो इंडिया से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदता था तो हम एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, लेकिन यहाँ पर चाइना आ गया, चाइना ने वही सारे आइटम्स को चीपर रेट में अकॉर्डिंग टू द इंडिया चीपर रेट में यूएसए को बेचना चालू कर दिया। यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो नहीं होगा, हमारी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड साइड भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि डिमांड रिड्यूस होगी मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा यानी कि एक्सपोर्ट की वजह से लॉस दिखाई देगा और अगेन डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फिर ऑन सप्लाई साइड में हम कैसे ले सकते हैं कि समझिए आप जो है सप्लाई करते हो, हम सप्लाई करें इट मीन्स हम इंपोर्ट करेंगे, हम बेचेंगे दूसरी कंट्री को। अगर समझिए इंडिया इज़ एग्रीकल्चर वर्ल्ड ना, इंडिया में समझो क्रॉप फेलियर हो गया, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलें ख़राब हो गई और रॉ मटेरियल कम हो गया, लेबर ने स्ट्राइक्स कर दिए या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, इट इज़ अ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इट इज़ नॉट द शॉर्टेज फ्रेंड्स, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस। उसकी वजह से या वॉर सिचुएशन आ गया तो हमारी तरफ से सप्लाई रुक जाएगा, हमारा इम्पोर्ट रुक जाएगा। अब अगर इम्पोर्ट रुक गया इम्पोर्ट नेगेटिव में चला जाएगा। This is a concept where we have to be match both the sides, like import and export should match with each other, then only you will get the equilibrium, otherwise you will get the disequilibrium again and again because of the differences in between the import and exports of goods and items. Here we have completed this important topic here. Anybody have any doubt and difficulty, you can do a message on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day and take care everybody.